السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. پچھلی مرتبہ ہم نے اسٹوری ٹیلنگ کے تعلق سے بات کی تھی اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ صرف اسٹوری ٹیلنگ کی بات کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ بات بچوں کے ادب پر، بچوں کی کہانیوں پر کی جانی چاہیے. اور اسی لیے آج ہم بچوں کے ادب کے تعلق سے یہ جو کہانیاں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں اور بہت مشہور ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے. بچوں کی کہانیوں کی بات ہو اور پنچ تنتر کا نام نہ لیا جائے یہ ممکن ہی نہیں. پنچ تنتر کی کہانیاں 300 قبل مسیح یعنی 300 عیسوی سن پورو، آج سے 2300 سال پہلے کہی گئی تھی، لکھی گئی تھی. ایک راجا جس کے 3 بیٹے نکمے تھے اور راجا نے سوچا کہ ان بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور اس نے ایک پنڈت جن کا نام وشنو شرما تھا انہیں یہ کام سونپا کہ ان بچوں کی مناسب تربیت کی جائے. اور پنڈت وشنو شرما نے ان راجکماروں کو راجنیتی اور دنیا داری کی باتیں سکھانے کے لیے جو کہانیاں کہیں وہ پنچ تنتر کے نام سے مشہور ہوئی ہیں. ان کہانیوں کے ذریعے نہ صرف بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے بلکہ انہیں اخلاق کے سبق بھی سکھائے جا سکتے ہیں. یہ کہانیاں اتنی مشہور ہوئی ہیں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا ہے. عربی میں بھی اس کا ترجمہ کلیلہ و دمنہ کے نام سے ہو چکا ہے. اتنی دلچسپ ہے یہ کہانیاں کہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ 8 سے لے کر 80 سال تک کے لوگ بھی اس کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں. ان کہانیوں کی جو کریکٹر ہیں، جو کردار ہیں، وہ جانور ہیں زیادہ تر، اور یہ جانور انسانوں کی طرح بولتے ہیں، انسانوں کی طرح حسد کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں. اس طرح سے تمام انسانی نفسیاتی پہلو ان جانوروں میں موجود ہیں. اب میں بات کروں گی گجراتی بال ساہتیہ کی. گیجو بھائی بدھے جب بھی گجراتی بال ساہتیہ کی بات ہوگی گیجو بھائی بدھیکا کا نام ضرور لیا جائے گا. گیجو بھائی بدھیکا نے بچوں کے لیے بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں اور اب تو ان کہانیوں کو الگ الگ حصوں میں بھی تقسیم کر کے پبلش کیا گیا ہے. 7 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے اور 8 سے لے کر 14 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے اس طرح سے ان کہانیوں کو پبلش کیا گیا ہے. گیجو بھائی بدھیکا کو مچھاڑی ماں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور کاکا صاحب کالیلکر نے انہیں بال ساہتیہ کا برہما یہ نام دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وسراتی جتی باڑ وارتاؤں 2 حصوں میں پبلشڈ ہوئی ہیں. گجراتی کے اندر اور بھی بہت سے نام ہیں. مثال کے طور پر اما شنکر جوشی، سندرم، پنا لال پٹیل، انہوں نے بھی کہانیاں لکھی ہیں. یہ کہانیاں ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھائی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نام لینا چاہوں گی اور وہ نام ہے شریفہ بین وجڑی والا، جنہوں نے گجراتی ناری سمپدا
इस किताब का संपादन किया है और आखिरी 100 सालों में जो बहनों ने गुजराती में कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों को जमा करके इन्होंने इस किताब का संपादन किया है। गुजराती नारी संपदा शरीफा विजड़ीवाला बेन का ये एक बहुत बड़ा काम शुमार किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उर्दू ज़बान में बच्चों का अदब। उर्दू अदब में अदब इत्फ़ाल, बच्चों के अदब की इब्तिदा नासिर खुसरो की खालिक बारी से मानी जाती है। इसके अलावा मीर तकी मीर ने भी मोहनी बिल्ली, घर का हाल, कुत्ते और बिल्ली जैसी मसनवियाँ लिखी हैं और बहुत से ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने उर्दू अफसाने और उर्दू कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, प्रेमचंद, ख्वाजा हसन निज़ामी, अज़ीम बेग चुगताई, इम्तियाज़ अली ताज, आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब, सालेह आबिद हुसैन, क़ुर्रतुल ऐन हैदर वग़ैरह के नाम हैं। अब 2-3 नाम जो हैं वो यहाँ पर मैं शामिल करना चाहूँगी। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी आदमी की कहानी, एक सितारे की ज़बानी, अब्बू खां की बकरी, गुले अब्बास और आखिरी कदम, ये बड़ी सबक आमोज़ कहानियाँ हैं। और इसी तरह से डिप्टी नज़ीर अहमद, उनकी मिरातुल उरूस नावल और तौबतुन नसूह नावल, ये दोनों नावल जो हैं वो औलाद की तरबियत के बारे में, उनकी इस्लाह के बारे में लिखे गए हैं। और उसमें तौबतुन नसूह जो है वो तो डिप्टी नज़ीर अहमद का एक शाहकार कहा जा सकता है। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बड़े घर की बेटी, ईदगाह, सवा सेर गेहूँ, 2 बैल, हज अकबर, शतरंज की बाजी, राह निजात और पंचायत। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो कहानियाँ हैं, ये जो अफसाने हैं, वो हाई स्कूल में जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं उनके समझ में आ सकती हैं, लेकिन जो उर्दू अदब में मंजूम कहानियाँ लिखी गई हैं वो वाकई में हमारे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो 7, 8 या 9 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही सबक आमोज़ ये नज़में हैं, जिनमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी लब पे आती है दुआ, तराना हिंदी, एक मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद, एक पहाड़ और गिलहरी। इसी तरह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मिट्टी का दिया। और इस्माइल मेरठी की बात कहूँ तो इस्माइल मेरठी जो हैं वो बच्चों के शायर के तौर पर मशहूर हुए हैं और उनकी जो नज़में हैं, नसीहत, एक बच्चा और जुगनू की बातें, सच कहो हमेशा सच कहो, इसी तरह से हामिदुल्लाह अफसर की चांद में परियां रहती हैं और हफीज़ जालंधरी की एक लड़की शादा, ये वो मंजूम कहानियाँ हैं कि जो बच्चों में दिलचस्पी भी पैदा करती हैं और कोई न कोई नसीहत उसमें पोशीदा है। इसी तरह से एक नाम मैं लेना भूल गई हूँ और वो है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों के लिए लिखा है। इसी तरह से अंग्रेज़ी अदब में
सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए लिखा गया है। हिंदी में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। यहाँ पर मैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत के बारे में भी ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो हिकायत लिखी हैं, वो भी सबक आमोज़ हैं, नसीहत आमोज़ हैं और उनका भी उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। इसी तरह से हम इस्लामी कहानियों की बात करें, क़ससुल अंबिया, इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी पेश की गई है। इसी तरह से जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में अगर हम पढ़ते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा या सीरत पाक का मुताला करते हैं तो उनमें से कई वाक़यात हमको ऐसे मिल जाएंगे कि जिससे हमको न सिर्फ़ नसीहत हासिल होगी बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीक़ा भी हम उन वाक़यात के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से औलिया अकराम की हालात ज़िंदगी अगर उनका मुताला हम करते हैं तो उसमें से भी हमें बहुत सारी ऐसी सबक आमोज़ बातें जानने को मिल सकती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो 7 साल की उम्र के हों या 14 साल की उम्र तक के हों या 17 साल की उम्र तक के हों, उनके लिए बहुत कुछ लिटरेचर, बहुत सारी कहानियाँ दस्तयाब हैं, हर ज़बान में दस्तयाब हैं। उन तक पहुँचाई कैसे जाएं, और ये वालिदैन पर भी फ़र्ज़ आयद होता है और हमारे स्कूलों पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि इस तरह की किताबें जो हैं वो बच्चों तक पहुंचाई जाएं। बहुत लोग इस किस्म की दलील करते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का ज़माना है और बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते। मैं डिजिटल मीडिया की मुखालिफत नहीं कर रही। इंशाअल्लाह हम कभी इस मौजू पर भी ज़रूर बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया की भी अपनी एक अहमियत है और किताबों की भी अपनी एक अहमियत है, और डिजिटल मीडिया के अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ये एक अलग मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह हम फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ अपने असातिज़ा से भी और वालिदैन से भी कि वो सिर्फ़ इतनी मेहनत करें, बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें ये किताबें उनके हाथों तक पहुँचाएं और वो ये किताबें पढ़ें, इतना उनको मोटिवेट करें। अगर वो ये किताबें पढ़ते हैं तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि ज़रूर उनके ज़हन भी तब्दील होंगे और उनके बिहेवियर में भी आप ज़रूर तब्दीली महसूस करोगे, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ये जादू की तरह काम करती हैं। सवाल हमारे बच्चों को वो कहानियाँ पढ़ें, उसके लिए मोटिवेट करना है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।